Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to teach you about the lesson about the poem Your Old Father William, written by Lewis Carroll. It is taken from his story from Alice in the Wonderland. So I will read, you should also read it. You are old, Father William, the young man said, and your hair has become very white, and yet you instantly stand on your head. Do you think at your age it's right? In my youth, Father William replied to his son, I feared it might injure the brain, but now that I am perfectly sure I have none, why I do it again and again. You are old, said the youth, as I mentioned before, and have grown most uncommonly fat. Yet you turned a back somersault and at the door. Pray, what is the reason of that? In my youth, said the sage, as he shook his grey locks, I kept all my limbs very supple. By the use of this ointment, 1 shilling the box. You are old, said the youth, and your jaws are too weak for anything tougher than suit. Yet you finished the goose with the bones and the beak. Pray, how did you manage to do it? In my youth, said the father, I took the law and argued each case with my wife, and the muscular strength which it gave to my jaw he lasted the rest of my life. You are old, said the youth. One would hardly suppose that your eyes were steady as ever, yet you balance an eel on end of your nose. What made you so awful clever? So dear students, बच्चों, ये एक जो पोएम है ये एक लेविस कॉरल ने लिखी है और उसकी लेसन फ्रॉम एलिस इन द वंडरलैंड से लिया गया है. तो यहाँ बाप और बेटे के दरमियान गुफ्तगू हो रही है. तो बेटा बाप से कहता है, यू आर ओल्ड फादर विलियम, द यंग मैन सेड. जो यंग मैन होता है, इसका बेटा होता है, वो कहता है उसका कि आप बूढ़े हो गए हो. एंड योर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइट, और आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं. एंड येट यू इंस्टेंटली स्टैंड ऑन योर हेड, और आप अब भी अपने सर पर खड़े हो रहे हो. डू यू थिंक एट योर एज इट इज़ राइट? क्या आपको नहीं लगता है कि ये सब ठीक है इस उम्र में? इन माई यूथ, फादर विलियम रिप्लाइड टू हिज सन. तो इस सवाल के जवाब में फादर विलियम जो है इस जवान को कहता है, इस बेटे को, जवान बेटे को कहता है, I feared it might injure the brain, but now that I am perfectly sure I have none, why I do it again and again. तो इसके जवाब में बाप कहता है कि जवानी में भी मैं यही सोचता था कि मुझे लग न जाए सर में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए इसको मैं बार बार करता हूँ. You are old, said the youth, as I mentioned before. तो फिर ये जो जवान होता है, यंग मैन होता है, वो इसे कहता है कि आप बूढ़े हो गए हो, जो मैंने आपको पहले ही कहा है. एंड हैव ग्रोन मस्ट अनकॉमनली फैट, और आप मोटे भी हो गए हो. Yet you turned a back somersault at the door. Play, what is the reason of that? इस उम्र में भी तुम कलाबाजियां मारते हो. इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या वजह है कि आप अभी भी चुस्त हो? इसके पीछे क्या रीज़न है? In my youth, said the sage as he shook his grey locks,
I kept all my limbs very supple by the use of this ointment. 1 shilling the box. Allow me to sell you a couple. बेटा कहता है, जो मैंने कहा, बेटा कहता है कि तुम मोटे हो गए हो, उस उम्र में भी तुम कलाबाजियाँ मारते हो। तो बाप ने इस सवाल के जवाब में कहा, मैंने अपने बाजों और टांगों को चुस्त रखा है तेल से, ऑइंटमेंट से। अगर तुम चाहो तो मैं तुझे 2-4 तेल के डब्बे बेच सकता हूँ। इस ऑइंटमेंट में मुझे चुस्त रखा है। तो यू आर ओल्ड said the youth, and your jaws are too weak for anything tougher than sape. Yet you finished the goose with the bones and the beak. Pray, how did you manage to do that? तो बेटा कहता है कि आप बूढ़े हो गए हो और आपके जो जबड़े हैं ये बहुत कमज़ोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं। कमज़ोर हो गए हैं और इसके बावजूद तुमने हड्डियों और चोंच समेत हंस को खा लिया है। तो बाप कहता है, इन माई यूथ सेड द फादर, आई टुक टू द लॉ एंड आर्ग्यूड ईच केस विद माई वाइफ। तो बाप ने कहा कि जवानी में मैं अपनी बीवी के साथ बड़ी बहस करता था, जिससे मेरे जबड़े मजबूत हो गए। And the muscular strength which it gave me to the jaws, he lasted the rest of my life. इससे मेरे जबड़े मजबूत हो गए, जबड़े मजबूत हो गए। तो इससे कहता है कि मैं जवानी में अपनी बीवी के साथ बड़ी बहस करता था, जिससे मेरे जबड़े जो है वो मजबूत हो गए। तो बेटा कहता है, यू आर ओल्ड सेड द यूथ, वन वुड हार्डली सपोज दैट योर आइज वाज स्टेडी एज एवर, yet you balanced an eel on the end of your nose. What made you so awful clever? तो बेटे ने कहा, तुम्हारी बीनाई भी बड़ी तेज़ है और ईल को अपनी नाक पर संभाला। ये सब कैसे किस चालाकी से आप करते हो? तो जवाब में कहता है कि I have answered 3 questions and that is enough. तो बाप को अब गुस्सा आया, तो वो कहता है कि मैंने आपको 3 सवालों का जवाब दिया है और ये काफ़ी है। सेड द फादर, डोंट गिव योर सेल्फ आयर्स। अब ज़्यादा हवा में मत उड़ो। डू यू थिंक आई कैन लिसन ऑल डे टू सच सेटअप? क्या सोचता हूँ कि मैं आपके सारा दिन आपका सुनूँ? बी ऑफ, अब चुप हो जाओ। और आई विल किक यू डाउन स्टेयर्स, वरना मैं आपको मार दूँगा। मैं आपको किक करूँगा, नीचे फेंक दूंगा। आप ऐसा, अब काफ़ी हो गया। आपके सवालों का जवाब, 3 सवालों का जवाब मैंने दे दिया है, इतना काफ़ी है। अगर आप और पूछोगे तो मैं आपको मार दूंगा। तो ये कुछ जो ये पोएम थी, यू आर ओल्ड फादर विलियम, ल्यूइस कैरोल ने लिखी थी और उससे लेसन फ्रॉम एलिस इन द वंडरलैंड से ली गई है। तो इसमें आपने देखा कि बाप और बेटी के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। तो बाप जो है वो अपने बेटे के सवालों का जवाब दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको घर में याद करोगे, पढ़ोगे और इसको याद करोगे। कल हम दूसरे वीडियो में इसके सवालों का जवाब लिखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।